आइज़ाया 35 चैप्टर, 36 चैप्टर, 37 चैप्टर। यशायाह की भविष्यवाणी 35, 36, 37 वचन अध्याय पढ़ेंगे हम। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे पहले किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर हम पढ़ेंगे इन्हीं अध्यायों को किंग्स हिंदी में BSI बाइबल में से। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से आइज़ाया चैप्टर 35। द joyful flourishing of Christ's kingdom, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। The wilderness and the solitary place shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as the rose. It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it. The excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the Lord and the excellency of the God of our God. Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Say to them that are of fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing. For in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert, and the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the habitation of dragons, where it lay, shall be grass with reeds and rushes. 8 words से आगे, and an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Hallelujah. But it shall be for those the wayfaring men, though fools shall not err therein. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. Hallelujah. देखिए परमेश्वर क्या रखा है हमारे लिए। ओके, ऐसी जगह जिसका वर्णन आप हिंदी में हम पढ़ेंगे तब ध्यान रखिए। 9 वचन में आपको ये बताया गया है, जो छुड़ाया गया है, मतलब जो उद्धार में आया है, उसके लिए ये वातावरण परमेश्वर ने बना के रखा है। हालेलुया। वो उसको वो देने वाला है, देने का रास्ता उसने हमको चलाया है। हम छुड़ाए गए लोग हैं। देखिए 10 वचन से आगे, एंड द ransomed of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. अब ये हम जी रहे हैं, अब भी एट प्रेजेंट हम ये जी रहे हैं। ये समय हमारा वो जीने का समय चल रहा है जो परमेश्वर ने ये 35 अध्याय में लिखा है। हम उसको जी रहे हैं। ओके, देखिए चैप्टर 36 पढ़ेंगे हम। हिंदी में जब पढ़ेंगे तब ध्यान देना उसको। ओके, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 36। Sennacherib invites Judah. Rabshakeh blasphemes persuasions to the people. First verse. Now it came to pass in the 14th year of King Hezekiah that Sennacherib, king of Assyria, came up against all the defenced cities of Judah and took them. And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto King Hezekiah with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field. Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah's son, which was over the house, and Shebna the scribe, and Joah, Asaph's son, the recorder. And Rabshakeh said unto them, Say ye now to Hezekiah, thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this there wherein thou trustest? I say, sayest thou.
but they are but vain words. I have counsel and strength for war. Now on whom doest thou trust, that thou rebellest against me? Lo, thou trustest in the staff of this broken reed, on Egypt, whereon if a man lean, it will go into his hand, and tears it. So is Pharaoh king of Egypt to all that trust in him. But if thou say to me, we trust in the Lord our God, is it not he whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away? And said to Judah and to Jerusalem, Ye shall worship before this altar? Now therefore give pledges, I pray thee, to my master the king of Assyria, and I will give thee 2,000 horses, if thou be able on thy part to set riders upon them. How then wilt thou turn away the face of one captain of the list of my master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen? And am I now come up without the Lord against this land to destroy it? The Lord said unto me, Go up against this land and destroy it. Then said Eliakim and Shebna and Joah unto Rabshakeh, Speak, I pray thee, unto thy servants in the Syrian language, for we understand it, and speak not to us in the Jews' language in the ears of the people that are on the wall. But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master and to thee to speak these words? Hath he not sent me to the men that sit upon the wall, that they may eat their own dung and drink their own piss with you? Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language, and said, Hear ye the words of the great king, the king of Assyria. Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you. Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us. This city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me, and eat ye every one of his wine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his own cistern, until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, and land of bread and vineyards. Beware lest Hezekiah persuade you, saying, The Lord will deliver us. Hath any of the gods of the nations delivered us his land out of the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arphad? Where are the gods of Sepharvaim? And have they delivered Samaria out of my hand? Who are they among all the gods of these lands that have delivered their land out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? But they held their peace and answered him not a word. For the king's commandment was saying, Answer him not. Then came Eliakim, the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna, the scribe, and Joah, the son of Asaph, the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh. Chapter 37. Hezekiah, in deep affliction, sends to Isaiah to pray for them. Isaiah comforts them. An angel destroys the Assyrians. Hallelujah. First verse se padhenge. And it came to pass, when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet, the son of Amoz.
And they said unto him, Thus saith Hezekiah, This day is a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy, for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth. It may be the Lord thy God will hear the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria, his master, hath sent to reproach the living God, and will reprove the words which the Lord thy God hath heard. Wherefore lift up thy prayer for the remnant that is left. So the servants of King Hezekiah came to Isaiah, and Isaiah said unto them, Thus shall ye say unto your master, Thus saith the Lord, Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king Assyria have blasphemed me. Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumor and return to his own land, and I will cause him to fall by the sword in his own land. So Rabshakeh returned and found the king Assyria warring against Libnah. For he had heard that he was departed from Lachish, and he heard say concerning Tirhakah, king of Ethiopia, He is come forth to make war with thee. And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying, Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God in whom thou trustest deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by destroying them utterly, and shalt thou be delivered? Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed, as Gozan and Haran and Rejeph and the children of Eden, which were in Telassar? Where is the king of Hamath, and the king of Arphath, and the king of the city of Sepharvaim? Hena and Iva and Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up unto the house of the Lord and spread it before the Lord. And Hezekiah prayed unto the Lord, saying, O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, Thou art the God, even Thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. 17th verse से आगे, Incline thine ear, O Lord, and hear. Open thine eyes, O Lord, and see, and hear all the words of Sennacherib, which hath sent to reproach the living God. Of a truth, Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their countries, and have cast their gods into the fire, for they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone. Therefore they have destroyed them. Now therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that Thou art the Lord, even Thou only. Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the Lord God of Israel, whereas thou hast prayed to me against Sennacherib, king of Assyria, this is the word which the Lord hath spoken concerning him. The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee, and laughed thee to scorn. The daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee. Whom hast thou reproached and blasphemed? And against whom hast thou exalted thy voice, and lifted up thine eyes on high, even against the Holy One of Israel? By thy servants hast thou reproached the Lord, and hast said, By the multitude of my chariots am I come up to the height of the mountains, to the sides of Lebanon, and I will cut down the tall cedars thereof, and the choice fir trees thereof, and I will enter into the height of his border, and the forest of his Carmel.
I have digged and drunk water, and with the sole of my feet have I dried up all the rivers of the besieged places. Hast thou not heard long ago how I have done it, and of ancient times that I have formed it? Now I brought it to pass that thou shouldest be to lay waste defenced cities into ruinous heaps. Therefore, their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded. They were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass of the housetops, and as corn blasted before it be grown up. But I know thy abode, and thy going out, and thy coming in, and thy rage against me, because thy rage against me and thy tumult is come up into mine ears. Therefore will I put my hook in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest, and this shall be a sign unto thee. Ye shall eat this year such as groweth of itself, and the second year that which springeth of the same, and in the third year sow ye and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof. And the remnant that is kept of the house of Judah shall again take root downward, and bear fruit upward. For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of Mount Zion. The zeal of the Lord of hosts shall do this. Therefore thus saith the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a bank against it. By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith the Lord. For I will defend this city to save it for mine own sake, and for my servant David's sake. Then the angel of the Lord went forth, and smote in the camp of the Assyrians 185,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned and dwelt at Nineveh. And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that Adramelech and Sharezer his sons smote him with the sword, and they escaped into the land of Armenia, and Esar-Haddon his son reigned in his stead. यशायाह 35 अध्याय, 36 अध्याय, 37 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में DSI बाइबल से। देखिए, अब ये 35 अध्याय जब मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी तभी हमको कुछ खास चीज़ मिली थी 9 वचन में, ओके, जो अब भी इसी समय मैं उसको अंडरलाइन कर ले रही हूँ। आपको चाहिए तो आप अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो आप ध्यान दीजिए कि ये चीज़ है जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए, जो उद्धार में आए उनके लिए रखा है। ओके, पवित्रता का मार्ग 35 वचन से 35 अध्याय पहले वचन से। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। हालेलुया। ये हमारा लाइफ है, ये मसीही जीवन है। ओके, आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, आपने अभी जान लेना है, ये हमारा मसीही जीवन है। ओके, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। हम प्रफुल्लित हो चुके हैं, ठीक है। जो हमारा पास्ट था, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में आने के पहले हमारा जो जीवन था वो जंगल और निर्जल देश था, मरुभूमि जैसा वो था। लेकिन हम अभी प्रफुल्लित हो चुके हैं और मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। हम फूल चुके हुए लोग हैं। हमने अपने आप के ऊपर ये देखना है, ये हो चुका है हमारे साथ।
वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा आनंद के साथ जय जयकार, देखो वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी। अब ये यहाँ पे प्रफुल्लित होने का जो है ये स्पिरिट है, ओके, जॉयफुल स्पिरिट है हमारे अंदर, और हम हमेशा प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमको कोई पूछेगा इसका कारण क्या है, हम बता नहीं पाएंगे। ये स्पिरिट ऑफ गॉड है जो हमारे अंदर प्रफुल्लित होने का वो समय लेकर आता रहता है और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। हालेलुया। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। हमारा स्पिरिट लाइफ जो है वो इस प्रकार से शोभायमान हो चुका है, सुंदर तेज से भरा हुआ है, और उस तेज को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हमेशा ही हमको परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कुछ ना कुछ जानकारियाँ हम इकट्ठा करते रहते हैं, परमेश्वर के महिमा की बातें हमको मिलती रहती है। ओके, 3 वचन से आगे, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। देखा, हम उद्धार कभी प्राप्त करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कभी हम यीशु मसीह को समझने लगते हैं, कभी हम समझने लगते हैं कि हमारा जीवन प्रफुल्लित हो चुका है, हमारा जीवन आनंद के साथ जय जयकार करने में शुरू हो चुका है। हम कभी ये सब कुछ हो सकता है जब परमेश्वर हमारी आंखें खोलेगा। ठीक है, जब तक परमेश्वर नहीं खोलता है हम परमेश्वर का उद्धार कभी भी इस प्रकार के अनुभव को नहीं देख सकते हैं। 1-2 वचन में जो दिखाया है नहीं देख सकते हैं। ओके, हम हमेशा 3 और 4 वचन में टकराते रहेंगे। क्या है वो? ढीले हाथ पड़े हुए, दृढ़ नहीं है, थरथरा रहे, घुटने स्थिर नहीं है, घबरा रहे हैं। ओके, अहियाव छोड़ रहे हैं। ओके, हम अपने शत्रुओं को देख के सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं, कैसे करें कैसे नहीं, कैसे आगे जाए कैसे पीछे जाए, कैसे क्या करना है। ओके, ये सब 3 और 4 वचन हमारे जीवन में इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे आँखों को खोला नहीं है। ओके, हमको जब परमेश्वर आँखों को खोलेगा और हमारे कानों को सुनने के लिए देगा तो ये पहला और दूसरा वचन हमारा शुरू हो जाता है। वो है हमारा रियल मसीही लाइफ, रियल उद्धार का हमने टेस्ट हमने शुरू कर लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5 वचन देखो क्या लिखा है। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। हम नहीं देखते हैं क्या ये चमत्कार हो रहा है ना? कितने सारे देख रहे हैं हम। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्रीज में भी देख रहे हैं, हम ANM मिनिस्ट्रीज में भी देख रहे हैं, कितने सारे। ओके, ये सारा चीज़ हो रहा है और ये सारा बोल दिया है। कभी होगा ये कभी होना शुरू हो गया जब परमेश्वर ने प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की आंखें खोली, अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज के अपोस्टल जी के आंखें खोले। ओके, इस प्रकार से जब उनकी आंखें खोली गई, जब उनके कानों को खोला गया सुनने के लिए, तब जाके क्या शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरने लगा और गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करने लगा। हालेलुया। तो ये सारा चीज़ परमेश्वर से होता है। हम अपनी ताकत और बल से परमेश्वर के उद्धार को कभी भी अपने अंदर खींच के ले नहीं सकते हैं। ओके, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। हालेलुया। हमारे हर एक ब्लेसिंग्स हमको मिलने लगता है, हर एक हमारे काम बनने लगते हैं। 7 वचन, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। देखा, तो इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको शुद्ध रहना ज़रूरी है,
पाप खत्म हो गया, चलो मान लिया, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध तो अभी भी चल रहा है। ओके, इजराइल लोगों का भी साल में एक बार वो पाप तो छुपा देता था यीशु मेमने के लहू से, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध रहने का काम तो उनका साल भर चलता ही था। ओके, अशुद्ध हुए तो उनको शुद्ध होना पड़ता था, शुद्ध है तो अशुद्ध नहीं होने की जिम्मेदारी उठाना पड़ता था, अशुद्ध हुए तो शुद्ध होना है, और शुद्ध रहने की जिम्मेदारी उठाना। तो शुद्धता और अशुद्धता की फाइट तो आज भी जंगी है। हालेलुया। तो इसकी वजह से ध्यान रखना है, अगर आप अशुद्धता में मगन रहेंगे, अशुद्ध कामों में आप अशुद्ध होते रहेंगे, तो फिर आपके चाल चलन से आप ये वाला रास्ता नहीं पकड़ सकते जो परमेश्वर ने रखा है। उसने क्या कहा, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। देखो, खत्म बात। ओके, अशुद्ध काम करके आप खो देंगे ये वाला रास्ता, ठीक है, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। आप खो देंगे ये वाला रास्ता, ये परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है आपको। ओके, आपको शुद्ध रहने की जिम्मेदारी उठाना है, ठीक है। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। हालेलुया। तो आपकी मूर्खता आपका कोई ऐसा बड़ा शर्मिंदगी की बात नहीं रहेगा, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। ये गारंटेड प्रॉमिस परमेश्वर दिखा रहा है यहाँ पे कि आप मूर्ख भी रहेंगे तो भी आप भटकेंगे नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे जीना आता ही नहीं है, मैं जस्ट एक मनुष्य के जीवन में जो नेचुरल होता है वैसे मैं जीती हूँ। मुझे ना ठीक समझ में आता है ना गलत समझ में आता है, सीधी तरह से जो रास्ता बनता है वही मुझे चलना आता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते मुझसे नहीं बनते हैं। ओके, तो उस प्रकार से हमारे अंदर की सिंपल माइंडेड इनोसेंट माइंड, ये जो है, ये नादान मन जो रहता है, जिसके अंदर कोई होशियारी, कोई प्रकार की बहुत चालबाजी, चालाकियाँ ऐसे जब नहीं रहता है, तो भी वो लोग भटकेंगे नहीं, ये गारंटी दिया है। तो मैं ये वचन तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर जाता है। मैंने परमेश्वर के आत्मा ही के कारण अभी तक मैं परमेश्वर में बनी रही हूँ। ओके, तो ये गारंटी दे रहा है परमेश्वर कि इस प्रकार से वो रास्ता सिर्फ उनके लिए रहेगा जो अशुद्ध नहीं होगा, ठीक है। अशुद्ध वाले वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। हालेलुया। छुड़ाए हुए यानी हम जो पापों से आज़ाद कर दिए गए, परमेश्वर ने हमको उसके अंदर ले लिया है, ये हमारी जगह है। इसके अंदर अब अशुद्धता का काम नहीं रह जाता। ओके, इसके लिए पतरस की पत्री में भी यही लिखा है ना कि जो आत्मा से जन्मा है वो पाप नहीं करता है, उसके पास अशुद्धता नहीं रहेगी। अब पाप तो है ही नहीं और अशुद्धता है ही नहीं। अशुद्धता को आप शरीर से करते हैं और पाप आपका आत्मा में था। अशुद्धता आपके शरीर से आप करते हैं। ओके, पाप आपके आत्मा का है और आप आत्मा में नए जन्म पा चुके हैं। इसकी वजह से आत्मा को अब पाप का डर नहीं रहा, वो पाप के पार हो चुका है। हालेलुया। और उसको कहा गया है तुम छुड़ाए हुए हो, ठीक है। और हम छुड़ाए हुए लोग निरंतर पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया। तो हम पवित्र मार्ग पर चल रहे, राजमार्ग पर चल रहे, लेकिन अगर हम अशुद्ध काम करेंगे तो हट जाते हैं इसके अंदर से। हालेलुया, हट जाते हैं हम, ये मार्ग में रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ लिखा है अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। ओके, तो आपका शरीर आपको काबू में लाना है, आपके शरीर के वासनाएं और लालसाएं आपको काबू में लाना है। वो आपको अशुद्ध करती है, वो आपके हृदय को अशुद्ध बातों से ज्ञान इकट्ठा करने के लिए बोलती है और उस ज्ञान में चलने के लिए मजबूर कर देती है। वो आपने छोड़ देना है। ओके, और बाकी तो आप बिल्कुल छुड़ा लिए गए हैं और राजमार्ग पर चल रहे और पवित्र मार्ग में से आप चल रहे हैं। ओके, आगे देखिए 10 वचन, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। हालेलुया। सदा का आनंद है, सदा का। ओके, वन डे आनंद नहीं है। हाँ, इसने आज तो मेरे मन को ठेस लगाई,
खत्म आनंद। ऐसा नहीं है ओ ये तो बहुत ही घमंडी है, खत्म आनंद। ठीक है वो घमंडी है तो घमंडी है, आपका आनंद क्यों खो रहे हैं आप? ओके ओ ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है आपको पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं है, वो अपनी जगह, आप अपनी जगह, आनंद क्यों खोते हैं आप? ओके तो आपका आनंद जो है वो आपके आत्मा के अंदर रहता है, और वो आत्मा का आनंद आपका शरीर की अशुद्धता वो पूरी तरह से आपको अनुभव करने नहीं देता है। ओके आपका आनंद आपके शरीर में पड़े हुए लालसाओं के कारण बिगाड़ दिया जाता है। परमेश्वर ने आपको दुखी नहीं किया है माय फ्रेंड्स। ओके परमेश्वर ने आपको प्रफुल्लित किया है, रिजॉइसिंग सोल बनाया है आपको। रिजॉइस करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र रास्ता आपको दिया, प्रफुल्लित करके आनंद के साथ जय जयकार करने के लिए दिया है आपको रास्ता। वो रास्ते से आप चल रहे। लेकिन अगर आपको दुख होता है, कष्ट होता है, ये प्रॉब्लम्स लगता है, वो प्रॉब्लम्स लगता है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स आपका शरीर आपको परेशान कर रहा है। ओके हमारा शरीर हमको काउंसलिंग कर रहा है, इसकी वजह से हमको परेशानी आती है, और हमारा जो परमेश्वर ने राजमार्ग दिया है उस पर से हम हट जाते हैं। तो हट गए तो क्या क्या हो जाता है? प्रफुल्लित नहीं होते हैं, फिर जय जयकार नहीं करते आनंद के साथ। ओके और यहोवा की शोभा हमें कभी, उसके तेज हमको देखने को नहीं मिलता है, फिर उसके वचन हमारे अंदर कभी भी प्रकाशित नहीं होते हैं। बस हम रूखे सूखे जमीन से जैसे चलते वैसे हो रहे होते हैं। ये क्यों आ जाता है? शरीर की अशुद्धता हम ओवरटेक नहीं कर रहे इसी वजह से। ओके शरीर के वासनाओं को हम ओवरटेक नहीं करते हैं, इसकी वजह से शरीर के काउंसल हम सुनते हैं, ये हमें अशुद्ध कर देता है। शरीर के काउंसल, शरीर सलाह देता है। ओके शरीर सलाह देता है हमको, हाँ ये ऐसा है, हाँ वो वैसा है, हाँ ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल खराब है, वो ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। वो ये सारा मसला शरीर आपको सिखाता है, परमेश्वर नहीं सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्रता, सीधाई और राजमार्ग से होकर चलने वाला रास्ता देता है। जो उस रास्ते में चलता है उसका अनुभव हमेशा आपको वचन 1 और 2 मिलेगा। हमेशा जब भी उसका ये अनुभव कहीं पर रुका हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइए शरीर की अशुद्धता ने उसको ट्रबल में डाल दिया। वो अशुद्धता कुछ भी हो सकता है रगड़े झगड़े हो जाए आपके एक आपस में, कुछ भी हो सकता है, वाद विवाद हो गए, या आपने किसी को माफ़ नहीं किया, आपने किसी के बारे में कड़वाहट रखी, बुराई रखी मन में, आपने अपने मन को साफ नहीं रखा है, अपने मन को शुद्ध नहीं रखा है, तो ख़त्म बात। फिर आप ये 2 वचन, पहला और दूसरा, आप में दिखाई नहीं देगा। हृदय की शुद्धता परमेश्वर चाहता है। ओके तो हृदय की शुद्धता के साथ जो चलता रहेगा, परमेश्वर वचन के अनुसार जैसा कह रहा है, हृदय शुद्ध रखो। कोई कुछ करता है तो माफ़ कर दो, कोई आपको ऑफेंड करता है, ठोकर लगाता है, आप उसे भुला दो। आप हर जगह में पवित्र वचन को याद रखो कि आप राजमार्ग में चल रहे हो, आप पवित्र मार्ग में चल रहे हो। और फिर माय डियर फ्रेंड्स देखो 1 और 2 वचन कैसे आपका पीछा करता हुआ आता है। ओके आप बोलेंगे मैंने तो कुछ किया नहीं, ऐसा क्यों मुझे खुशी हो रही है पता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, शरीर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सेलिब्रेट क्यों कर रही हूँ मैं? ओके ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों मैं आनंदित हो रही हूँ? ओके क्यों मैं इतनी मगन हो रही हूँ परमेश्वर में? क्योंकि ये राजमार्ग है। हालेलुया। ये आपका प्रूफ है कि आप मन को पवित्र रखे हैं, आप शुद्धता का जीवन जी रहे, ये आपका प्रूफ है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। हालेलुया। ये आपका डॉक्यूमेंट है कि आप सच में शुद्ध जीवन जी रहे। ओके ये आपका प्रूफ है, आइडेंटिटी कार्ड है ये आपका। ओके और मैं हमेशा इसके ऊपर ध्यान रखती हूँ। जब मैं ये खो देती हूँ पहला और दूसरा वचन का अनुभव, तब मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ मेरे शरीर ने कुछ तो चालबाजी कर दी है, और जिसके कारण ये 2 वचन मेरा जीवन में दिख नहीं रहा है। हालेलुया। तो तुरंत मैं रिपेंट करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है मैं पश्चाताप करना शुरू कर देती हूँ, और मैं ये 2 वाला वचन, 1 और 2 वाला वचन दोबारा मैं खींच के ले लेती हूँ अपने अंदर। ओके ओके 10 वचन, 1 और 2 वचन, ये मैं अपने अंदर से खोने नहीं देती हूँ। और जब भी मैं खोती हूँ इसको कुछ समय, कुछ पल के लिए भी, तो भी मुझे पता चल जाता है कि मेरे शरीर ने
धोखा दिया है मुझे। ओके, कुछ तो ऐसा काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ठीक है, शायद से मैंने मम्मी को उल्टा जवाब दे दिया होगा, शायद से मैंने मन में कुछ कड़वाहट रख ली होगी, शायद से मैंने किसी को माफ़ नहीं किया होगा, शायद से मैंने किसी के साथ विवाद कर लिया होगा, शारीरिक चाल चल रही होगी, कुछ तो किया होगा जिसके कारण मेरा ये अनुभव खींच लिया गया, निकल गया मेरे अंदर से। ओके, ये है आपका आइडेंटिटी कार्ड है ये। ठीक है, ध्यान रखिए, जब मन अशुद्ध रहेगा 35 अध्याय का पहला और दूसरा और 10 वचन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मन शुद्ध रहेगा तो 35 अध्याय का पहला और दूसरा वचन सल्यूट करेगा, आपके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आएगा। 10 वचन आपके पीछे पीछे दौड़ के आएंगे। हालेलुया। देखो आगे पढ़ेंगे। 10 वचन, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। अभी हम सियोन में आ चुके हैं, हाँ, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। हालेलुया। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। मुझे पता नहीं क्या दुख रहता है, मुझे पता नहीं कौन सा नाम है दुख, मतलब किसका नाम है, आई डोंट नो। ओके, कुछ ज़बरदस्ती मुझे दुखी किया जाता है तो मुझे वहाँ पर यही मालूम है, अगर मैं उस दुख को भुला ना दूँ और मैं परमेश्वर की ओर ध्यान न दूँ तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, क्योंकि वो अशुद्धता है। परमेश्वर ने हमें राजमार्ग में रखा है, वहाँ पर दुख नहीं है, परमेश्वर कहता है। फिर ये दुख मुझे क्यों आ रहा है, तो ये अशुद्ध करने के लिए आया, ताकि परमेश्वर का अपमान हो, मैं दुखी बन के, है ना। इसकी वजह से मैं नहीं करती हूँ दुख, कोई भी बात में नहीं करती हूँ। हाँ, मैं रास्ता ले लेती हूँ प्रार्थना करके, परमेश्वर से ले लेती हूँ रास्ता। कोई दूसरी बातें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, दुख नहीं होता है मुझे, व्याकुल नहीं होती हूँ मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती हूँ, लॉर्ड ये क्या है, लॉर्ड आई डोंट अंडरस्टैंड, लॉर्ड डू समथिंग अबाउट दिस, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है, लॉर्ड इसके विषय में क्या, बस दैट्स ऑल। लॉर्ड 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 लॉर्ड, दैट्स ऑल। ओके, तो इस प्रकार से आपको शुद्ध मन रखना आना चाहिए, तो आपका मसीही जीवन में पहला और दूसरा वचन का अनुभव कभी नहीं खोना है, और 10 वचन भी आपका कभी नहीं खोना है। हालेलुया। ये आपका कंप्लीट पैकेज है, 35 अध्याय कंप्लीट उद्धार का जीवन का पैकेज दिखा दिया आपको, और आप सियोन पहुंच चुके लोग हैं, और आप ये सब कुछ में मौजूद है अभी। हालेलुया। शुद्धता महत्व रखती है माय फ्रेंड्स। ओके, पाप के लिए नहीं डरेंगे आप, लेकिन शुद्धता तो है भाई। ओके, तो शुद्धता के लिए आपने हमेशा चौकसी रखना है अपने लाइफ का। आपको ये अलर्ट जो बोलते हैं ना, अलर्ट रिंग, क्या बोलते हैं उसको, अलर्ट आवाज़ देने वाला ऐसा रहता है ना, अलर्ट अलार्म करता है, अलर्ट करता है वो, तो वो अलर्ट करने के लिए आपको ये एक रास्ता है। जब भी आप शरीर से अशुद्ध काम आपके होते हैं, कुछ भी शरीर के लालसाओं में आप कहीं कुछ गलती कर देते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता आप वैसा कुछ कर देते हैं, तो फिर आपके अंदर से पहला और दूसरा वचन गायब हो जाता है। ठीक है, और 10 वचन भी गायब हो जाता है। आप समझ जाना है, आपको रिपेंटेंस की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, और दोबारा पहले दूसरे और 10 वचन में अपने आप को भर देना है। हालेलुया। आसान है ना आत्मिक जीवन। ओके, शुद्ध रहना ज़रूरी है। ठीक है, यरूशलेम पर अश्शूर का आक्रमण, 36 अध्याय पहले वचन से। हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया, और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किया का पुत्र इलियाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शिबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योवा जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो, महाराजा धीराज अश्शूर का राजा यूँ कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है,
मेरा कहना है कि क्या मोह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? तो किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र का पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो? इसलिए अब देखो ये 7 वचन, देखो कैसा, इसे कहते हैं मॉकर्स, ठट्टा उड़ाने वाले। ठीक है, ठट्ठा करने वाले किस प्रकार से ठट्ठा करते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये वही क्रिश्चियंस लोग नहीं है जिनका वो पास्टर ऐसे ऐसे काम कर रहा था, उनकी ऐसी ऐसी चर्चाएं थी। ओके, जो बातें हमारी फेल हो चुकी है वो उन्हीं को उठाकर बोलेंगे ये लोग वही है ना, वही चर्च वाले लोग हैं ना ये, हाँ यही लोग हैं ना वो। ओके, ठट्ठों के अंदर से वो हमारी जानकारियाँ देंगे लोगों को। ओके, 8 वचन से आगे, इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके, फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हरा सकेगा? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एलियाकीम, शेबना और योआ के रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के यहाँ या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाने और अपना मूत्र पीना पड़ेगा? तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज अधिराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि वह यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ। तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में न ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश और रोटी और दाख की बारियों का देश है। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपर्वैम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? ओ कैसे ठट्ठों में कैसे कितना भूल जाते हैं लोग बातें करते समय, है ना। 21 वचन देखेंगे आगे। परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही। हालेलुया। देखा क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु वे चुप रहे। हालेलुया। मसीही, परंतु हम चुप रहना है और उसके उत्तर में एक बात भी नहीं कहना है, ठीक है, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। हालेलुया। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआ जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कहे सुनाई। हालेलुया।
आगे देखो क्या लिखा है, राजा का यशायाह से सलाह मांगना। 37 वचन। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, 37 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जन्मने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उसके लिए उन्हें दपटे। ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर के लोगों के विरोध में, परमेश्वर के जनों के विरोध में जीभ उठाई जाती है, मौकरी की जाती है, ओके, ठट्ठों में उड़ा दिया जाता है, ऐसा बोलकर कि ये है वो परमेश्वर। देखो ये तो ऐसे ही है ना, उनका ऐसे ऐसे करके रखा था, यही लोग ना वो। अगर ठट्ठों में उड़ाओगे तो याद रखना क्या है, यहाँ पर जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, हालेलुया, उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तो इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। हालेलुया, ये है मसीही जीवन। ठीक है, जो हमारे विरोध में अपनी जुबान उठाते हैं, तो क्या बोला है 4 वचन में, संभव है, ठीक है। तो अब जो भी बोल रहा है हमारे विरोध में, सुनने वाले सुने, लेकिन और एक जन सुन चुका है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। जब भी हम किसी के पास खड़े होकर मसीही लोगों की चापलूसी कुछ बताएंगे, कुछ भी गलत बातें बताएंगे, ओके, सुनाएंगे किसी को कि ये ना, हाँ ये ऐसे, ये वो, ये ऐसे ऐसे स्टोरीज, एनी स्टोरी, रॉन्ग स्टोरीज, चाहे वो सच भी हो, फिर भी आपको अधिकार नहीं है मसीहों के विरोध में ऐसी बातें करने का। जब आप खुद मसीह है और मसीहों के विरोध में ऐसे बातें करेंगे, डेंजर जोन में है आप, ओके, क्योंकि आपको परमेश्वर सुन रहा है। आपके शरीर के अशुद्धता ही के कारण आप दूसरे मसीहों की निंदा करने में शामिल हो जाते हैं, ओके। आपका शरीर आपको परेशानी कर रहा है, आप मसीह कह रहे हैं अपने आप को, तो 35 अध्याय में खुल्लम खुल्ला लिखा है कि ऐसे जो अशुद्धता है वो राजमार्ग पर नहीं चलेगा, उस पवित्र मार्ग से वो नहीं चलेगा। तो जब आप अशुद्ध कर रहे हैं, किसी की बदनामी कर रहे हैं, किसी मसीह को जलील कर रहे हैं, किसी मसीह के विषय में आप जब ऐसा कुछ तो बोल रहे हैं जो दूसरों के मन खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ आप सुना रहे, तो माय डियर फ्रेंड, आप अशुद्ध हो चुके, ओके। अब नतीजा क्या आएगा? हम जब शुद्धता में चलते हैं तो हम आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, जय जयकार करते हैं, ओके, उमड़ कर परमेश्वर के संगति में जीते हैं। आप नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि आपने अशुद्ध रास्ता पकड़ लिया। हालेलुया। फिर देखने वाले लोग ये कहते हैं, तुम भी मसीह हो, वो लोग भी मसीह है, लेकिन तुम में और उनमें कितना फर्क है? वो कितना चिल्लाते रहते हैं, वो कितना चीखते हैं, वो कितने हुल्लड़ मचाते रहते हैं, इतने धूमधाम मचाते रहते हैं, क्या है उनके पास ऐसा? लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। उनकी बातों में तो परमेश्वर का सारा सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है, आपकी बातों में तो कुछ प्राप्त ही नहीं होता है। आप भी मसीह है, वो भी मसीह है, फर्क क्यों ऐसा? माय डियर फ्रेंड्स, फर्क इसलिए है कि उनके शरीर की अशुद्धता को वो छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने लेबल लगा लिया है कि हम मसीह है। हालेलुया। तो शुद्ध और अशुद्ध में पहचान करने के लिए 35 अध्याय जबरदस्त काम करता है। हालेलुया। पहला और दूसरा वचन प्रूफ देता है कि आपका मन शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। जब पहला वचन, दूसरा वचन नहीं है और 10वां वचन नहीं है आपकी लाइफ में,
ओपनली प्रूफ दे देता है कि आप अशुद्ध मन से जी रहे हो। खत्म, बात करो, बात खत्म कर दो, ठीक है। मत बोलो किसी को कि हम मसीह है, आपका प्रूफ दिखता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने ध्यान रखना है, हमारे प्रूफ दिखते हैं हम सच में मसीह है या सिर्फ नाम के लिए मसीह है, ठीक है। 5 वचन से आगे पढ़ेंगे। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा ओके देखा, ये वॉइस सिस्टम है परमेश्वर कहता है वो अब क्या करने वाला है, वो खुद अपने मन के अंदर प्रेरणा को लेगा, ओके, कि वो चला जाए अपने देश में, और वो चला जाएगा और वहां जाके वो तलवार से मार डाला जाएगा। खत्म बात ओके। तो इस तरह से होता है, आप ध्यान रखिए, परमेश्वर से निपटना मुश्किल है मेरे फ्रेंड्स, ओके। आप परमेश्वर के साथ खेलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो जिंदा परमेश्वर है, ओके, वो जिंदा परमेश्वर है। अशुद्धता का उसको जरा भी डर नहीं है, अशुद्धता को रौंद देता है वो, ओके। अशुद्धता के नीचे दबकर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। तो आप मसीह हो और अशुद्ध जीवन जी रहे हो, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ठीक है। आप मसीह हो और दूसरे मसीहों की निंदा कर रहे हो और बदनामी कर रहे हो, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ओके, क्योंकि वो परमेश्वर है। देखो क्या क्या दिया है, देखो क्या दिया है, रास्ता क्या दिया है। जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उसके लिए उन्हें दपटे, अतः तो इन बचे हुओं के लिए जो रह गए प्रार्थना कर, ओके। तो हम लोगों के अंदर से सोच में क्या आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है, किसी के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, प्रार्थना करो, ओके। आप अपना पर्सनल इंटरनल लाइफ, आपका अंदरूनी जीवन, आप क्या हो, वही आप मसीह हो या नहीं हो डिक्लेयर करता है, ओके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपका मसीही होकर लेबल चढ़ाकर जीवन मसीह नहीं बनता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अश्शूर की पुनः धमकी, 8 वचन से आगे। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। उसने कुश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो है ना, मन में प्रेरणा उत्पन्न करूँगा, ये एरिया ऑफ लाइफ को आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। प्रेरणा उत्पन्न करूँगा, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूँगा, प्रेरणा को उत्पन्न करूँगा कहा परमेश्वर ने, और करने वाला कौन है, परमेश्वर है। यानी आत्माएं, परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। यानी स्पिरिट्स क्या कर सकते हैं, प्रेरणाओं को मन में उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसके लिए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर अगर तूने प्रेरणाओं को रखा है तो वो बनी रहे, अगर तूने नहीं रखा है ये, तो ये हमारे जीवन से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि जब दुष्ट आत्माएं मन में प्रेरणाएं उत्पन्न करती है, तो वो एंड रिजल्ट में, जिस तरह से परमेश्वर ने पनिश करने के लिए एंड रिजल्ट रखा था, क्या था कि वो प्रेरणा को सुनेगा और फिर उसके पीछे चला जाएगा और वहां पर वो तलवार से मारा जाएगा, ओके। तो ये स्ट्रैटेजी परमेश्वर ने प्रेरणा उपजा के किया, वैसे ही दुष्ट आत्मा के जगत के लोग करते हैं,
ठीक है, तो हमने हमेशा इसके अंदर अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। परमेश्वर हमारे मन में आज ये कोई समय ऐसा प्रेरणा मत रहने दे जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, हम उसके पीछे जाने मत दे, हमको रोक के रख, हमें उसके पीछे जाने मत दे, नासरी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। ओके, ये आपको बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, ये आपको कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं है। ये प्रार्थना ज़रूरी है, क्योंकि हम मन में निकल आता है तभी हम कुछ करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट हमने देखा नहीं होता है। इसकी वजह से हम जस्ट कर तो देते हैं, लेकिन हमको उसका भविष्य में क्या लाभ है या हानि है हम माइंड नहीं करते हैं उसके बारे में। ओके, जैसे किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इकट्ठे हो गए, हाँ चलो अब मैरिज करें और कर लिए, लेकिन जानते नहीं है कि ये प्रेरणा उनको किसने दिया, और फिर बाद में मैरिज के बाद धक्के खाकर टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमको मन के अंदर जो भी सूचनाएं आती है परमेश्वर से हमने उसके ऊपर चौकसी रखना है। आगे पढ़ेंगे हम 9 वचन। उसने कुश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों की और तलस्सर में रहने वाले अदीनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमात का राजा और पाद का राजा, सपरवैम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा, ये सब कहाँ गए? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोल कर देख और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। देखो किस प्रकार से प्रार्थना किया जाता है। आपको वो वचन याद है जो कहा गया था कि अपने मुद्दई से, मतलब अपने बैरी से रास्ते में है तभी जाकर तू समेट कर ले, नहीं तो वो तुझे क्या करेगा? वो तुझे किसके पास? न्यायाधीश के पास लेकर जाएगा, हकीम के पास लेकर जाएगा, बंदी गृह में डाल देगा। वहाँ से पाई चुकता ना करे तब तक वो तुझे वहाँ से छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? पश्चाताप हृदय, इसको बोलते हैं पश्चाताप हृदय। ठीक है, कर दी बदनामी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दी निंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर आगे एक बात आ जाता है कि जिसको ये पता चल जाता है कि हाँ ये तो सच है, जो बोल रहे वो तो सच है, सच में ये तो गिरावट हमारे ज़िंदगी में तो हुई है। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं कि हमने ऐसे ऐसे बातों के अंदर हमारे लाइफ के खराबी देखी है। हम जानते हैं कि हमने उस समय परमेश्वर को छोड़ा होगा, कुछ तो हमसे गलती हुई होगी, इसीलिए हमने ऐसा किया। कोई बात नहीं, अब ये ऐसे हो रहा है हमारे साथ परमेश्वर कि अब ये लोग हम पर से इस प्रकार से हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तरह से हमको परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है और बैरी से हमने जल्दी से अपने हाथ छुड़ा लेने हैं। ठीक है, मान लेना है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, जो हुआ मान लेना है। ओके, हाँ ठीक है, फेल हो गए, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, हम सिलेक्ट नहीं हुए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये एरिया ऑफ लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई, नो प्रॉब्लम।
परमेश्वर तू जानता है ये मेरे लिए लोगों के बीच में निंदा का विषय है। हालेलुया। तो अब इसके अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि तू ही इसके अंदर कोई रास्ता दिखाएगा, तू ही मुझे इसके पार लेकर जाएगा, तू ही मेरे जीवन को सही कर सकता है। ओके, क्या लिखा है? अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। ये पश्चातापी हृदय के साथ और बैरी के साथ जल्दी से हाथ छुड़ा लेने का समय, कैसे प्रार्थना करना है ये वाला ध्यान रखना है। ये प्रार्थना को आप पूरी तरह से बॉक्स बना के रखो और ये पूरे वचन आप हमेशा अपने लिए भी बोल सकते प्रार्थना करते समय। ठीक है। राजा के लिए यशायाह का संदेश 21 वचन से आगे। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पाँव रखते ही उन्हें सुखा दिया। हालेलुया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। हालेलुया। मैं तो तेरा बैठना, कुछ करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि उस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आपसे आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। देखो, ये अंजाम है। 30 वचन ये अंजाम है। ओके, ये आपको रिजल्ट से, जब आप परमेश्वर ने कही हुई कुछ बात करते हो तो परमेश्वर उसके साइंस देता है, रिजल्ट्स देता है, नतीजे देता है। मसीह जीवन नतीजों से भरा हुआ है, चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ है। ओके, 31 वचन देखिए क्या है। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। देखा, फिर जड़ पकड़ेंगे। हमको परमेश्वर छोड़ नहीं देता है, वो हमको हताशा में ढकेल कर मज़ा नहीं लूटता है। ओके, हंसने में मज़ा नहीं, आनंद नहीं करता है वो। ओके, हमारी हालत को देखकर वो हमें फिर से उठने का रास्ता देता है। अशुद्ध रास्ते में गिर जाते हैं हम, लेकिन फिर परमेश्वर की तरफ आने से हमें वो दोबारा हरियाली सा बना देता है। आमीन। 32 वचन से आगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपने जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय की यों कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर के एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। हालेलुया। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। देखिए, हमने ये वचन वॉरफेयर में यूज़ करना है।
हमने हमेशा शत्रुओं के बारे में, जो दुष्ट आत्माएं है उसके विषय में, जो आप बोलते हैं ना ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, तो ये वचनों को हमने बोलना है। ये आप बोलते हैं ना कि मैं कैसे प्रोटेक्शन करूं, मैं कैसे प्रोटेक्ट रहना है, मैं कैसे प्रोटेक्शन का प्रेयर करना है, ये प्रोटेक्शन का प्रेयर है। यहोवा ऐसा करता है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हालेलुया। देखो क्या लिखा है 35 वर्स में, क्योंकि मैं अपने निमित्त, यानी हम क्यों इतने आनंदित, प्रफुल्लित, मगन और सब कुछ शुद्धता में जीवन जी रहे? परमेश्वर के निमित्त। ओके, उसने अपने निमित्त हमको ऐसा बनाया है कि हम उद्धार में जीवन जी रहे हैं। मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हालेलुया। आपके लिए ये प्रोटेक्शन प्रेयर आप नोट डाउन करके रखिए। ओके, 15 वचन से लेकर ये जो 20 वचन तक वाला, और फिर जो भी आगे हमने पढ़ा 33 वाला, 33 से लेकर 35 वाला। ओके, और जो हमने वो किस प्रकार से जवाब देता है परमेश्वर वचनों में 23 वचन से 29 वचन तक, वो भी हमने सीख लेना है कैसे परमेश्वर वचन देता है लोगों के प्रार्थना का। प्रार्थना किया था, है ना, 15 वचन में देखा ना आपने, प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने जवाब लाया। ये ओके, ये जवाब में आ गया परमेश्वर की ओर से कि वो क्या करने वाला है अभी शत्रुओं को, ठीक है। तब 36 वचन से आगे, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। देखा, अब मैं आपको ये क्वेश्चन मार्क करती हूँ, विपत्ति डायरेक्ट नहीं आती है, विपत्ति को रास्ता दिया जाता है। समझ आना चाहिए आपको। ओके, जो परमेश्वर के शुद्ध मन में और शुद्धता के मार्ग से, सीधाई और खराई के रास्ते से चल रहा है, तो परमेश्वर देखो क्या कह रहा है 33 वचन से कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। अगर आप अशुद्धता में जीवन जिएंगे तो क्या, कहां से, कैसे आंधी तूफान निकल कर आएंगे आप नहीं बता सकेंगे, ठीक है। अशुद्धता डेंजरस जोन है, और मैं तो इसे अपने ऊपर ऐसे क्या कहते हैं एक प्रकार का फटके लगा कर मैं अपने आप को सुधारती हूँ इस बारे में। ओके, अशुद्धता को छोड़कर जियो, अशुद्धता को छोड़कर जियो, अशुद्धता को छोड़कर जियो। ओके, जैसे मैं खुद को मार मार के सिखाती हूँ, अशुद्धता से अलग हो जाओ अलग, बस हो गया, चलो निकलो वहां से। ओके, हर जगह से, हर समय, हर दिन, हर पल मुझे अपने आप को डांट के, फटकार के, वहां से हटा के परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध जीवन होने के लिए मैंने अपने आप को रखना पड़ता है। इतना भारी मेहनत है शुद्धता का जीवन जीने में। ओके, शुद्धता का जीवन जीना मतलब चौकसी रखते हुए जीना है। जैसे एक रखवालदार होता है, उस प्रकार से हम अपनी रखवाली करते हैं कि हमारे अंदर कोई अशुद्धता ना रहे। चौकसी रखते हैं हम अपनी। ओके, अलर्ट पर बने रहते हैं अपने अंदर। थोड़ा भी हमारे अंदर से चेंजेस आ गया तो तुरंत हम भाप लेते हैं, ये चेंजेस क्यों आया, ओके, ये क्या है, ये क्यों हमारे लाइफ में आया, इसके बारे में क्या है। जल्दी से हम उसका फैसला कर लेते हैं और जल्दी से हम अपने आप को शुद्ध रास्ते में पकड़ के, खींच के, फटके लगाते, ओके, दुखी करके, कष्टी करके, ओके, दबोच के, मरोड़ के, कैसे भी करके, सब कुछ उथल पुथल करके शुद्धता के रास्ते में लाके बिठा देना पड़ता है शरीर को। हालेलुया। शरीर बदमाश है। ओके, शरीर किसी को खुश नहीं कर सकता है, किसी को नहीं। वो हमेशा दूसरों को ठोकर देगा और खुद भी ठोकर खाएगा।
ना दूसरों को आगे जाने देगा, ना खुद आगे जाएगा। ओके, बदमाश है, शरीर बदमाश रहता है। ओके, इसके लिए हम लोगों को शरीर में अशुद्धता का पालन पोषण नहीं करना है। हमने जान रखना है कि हम पवित्र परमेश्वर के राजमार्ग पर चल रहे हैं और पवित्र मार्ग है और उसके ऊपर कोई अशुद्ध जन नहीं चल सकता है। अशुद्ध जन बोला, आत्मा नहीं, अशुद्ध जन यानी शरीर जो अशुद्धता करता है वो उस पर नहीं चल सकता है। हालेलुया। तो हम मसीह में तो हैं, लेकिन हम उस मार्ग से नहीं चल रहे होते जो हमारे लिए रखा हुआ है। ओके, तो ये तरह से हमने शरीर की बातों को ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करना है। ठीक है, शरीर को फटके मारना है, थप्पड़ मारना है, थप्पड़। ठीक है, ना वो दूसरों को दुखी करना है, ना वो खुद को दुखी करना है। हमने परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बनाया है, शरीर को उसको आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर कर देना है, मजबूर कर देना है। वो अपने आप को कोई भी बदमाशी करने के लिए आज़ाद नहीं है, कोई किसी को ठोकर लगाने के लिए आज़ाद नहीं है, किसी को दुखी करने के लिए आज़ाद नहीं है, वो किसी के बारे में ऐरे गहरे बातें बोलने के लिए आज़ाद नहीं है, कुछ भी करने के लिए जो अशुद्धता का है वो कुछ भी ऐसा करने के लिए आज़ाद नहीं है। हमारे शरीर को थप्पड़ मार मार के सिखाना है ये। ओके, घूसे मार मार के सिखाना है कि हमने सीधी चाल रखना है, हमने किसी के लिए कोई भी जगह में कोई भी प्रकार से हम अड़चन नहीं बनना है। ओके, ये बात ध्यान रखिए, हमारे अंदर की शुद्धता बरकरार रखना है। आपका शरीर किसी को खुश नहीं कर सकता है, लेकिन आप अपने अंदर शुद्धता के जीवन को बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। ओके, आपका चुनाव शायद से दूसरों को पसंद नहीं आएगा, या आपका बर्ताव हो सकता है 10 चीज़ें आपकी मन भावनी थी, लेकिन 11वीं चीज़ आपने ऐसे कर दी कि किसी का मन टूट गया आपके बारे में। हो सकता है ऐसा। ओके, हो सकता है ऐसा कि उनको मजबूर कर दिया आपने बोलने के लिए कि ये तो बहुत ही बदमाश है। ओके, मजबूर कर दिया। ओके, बदतमीज़ है। ओके, ये बोलने के लिए भी मजबूर कर दिया होगा, ऐसा भी आपने कुछ कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने अंदर से ये देखना है, आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई आपको 24 घंटों सराहता नहीं बैठेगा। ओके, वाही करते नहीं बैठेगा। ठीक है, शरीर आपको कोई तसल्ली नहीं दे पाएगा। शरीर आप किसी को आप शरीर से कुछ भी नहीं कर पाओगे जो बना रहेगा। ओके, शरीर हमेशा धोखा देता है और धोखेबाज है, क्योंकि उसके अंदर अक्ल नाम की चीज़ नहीं रहती है। शरीर में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, शरीर में महामूर्खता बैठी हुई रहती है। ठीक है, शरीर बिल्कुल कोई नियम पालन नहीं जानता है, कोई प्रकार की हद नहीं मानना चाहता है, कोई प्रकार का डर नहीं रखना चाहता है। इसके लिए शरीर के पीछे नहीं चलना है। ओके, और ये जानना है कि शरीर हमारा किसी को कोई भी भले बात नहीं दे सकता है। ओके, तो हम किसी के द्वारा ठुकराए गए, किसी के द्वारा परेशान कर दिए गए, किसी के द्वारा बदनाम कर दिए, किसी के द्वारा कुछ भी जो भी हमारे विरोध हो गया, छोड़ देना है, क्योंकि हमारे शरीर ने उनको मजबूर कर दिया हम पर ऐसे आक्रमण करने का। ठीक है, अब ये शरीर को हमने फिर आगे चल के एक रास्ता पकड़ना है, हमारे अंदर की शुद्धता को बरकरार रखना है। दैट्स ऑल, वो संभव है आपके लिए। ओके, बाहर के दुनिया को आप नहीं समझा सकते आप क्या है कैसे, लेकिन आप अंदर ही अंदर आपके अंदर शुद्धता का माहौल बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो आप बाहर वालों से बेफिक्र रहिए, वो आपको आज के दिन ऊंचा ऊंचा उठाएंगे, कल के दिन ठपाक करके गिरा देंगे। ओके, तो इसके लिए बाहर की जगत में जहाँ तक आप उनके शरीर को आनंद दे रहे हो, तब तक वो आपके हाँ 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 करेंगे। जैसे ही आप उनके शरीर के आनंद को तोड़ देंगे, तुरंत वो आपको नफरत करना शुरू करेंगे। ओके, तो बाहर अस्थिर जीवन है, बाहर के लोगों पर आपका शुद्धता अशुद्धता नहीं है। आप अपने अंदर से शुद्ध रहना संभव करना है, संभव है, वो 100% संभव है।
ओके, तो इस प्रकार से ये अध्याय को हमने बहुत अच्छे से अपने अंदर सीख लिया है। परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा, बड़ी दया से तूने हमें ये सारा चीज़ सिखाया और हमें क्यों आंधी तूफानों का सामना करना पड़ता है, क्यों हमारे विरोध लोग चढ़कर आ जाते हैं, उन्होंने क्या देखा हमारे बारे में, हमारा परमेश्वर काम नहीं करता है, ये देखा उन्होंने। ओके, ये देखा कि हमारा परमेश्वर उनको हमारा परमेश्वर कुछ लोगों को मरते हुए नहीं बचाया, हमारे परमेश्वर ने कुछ लोगों को बीमारियों से नहीं छुड़ाया, हमारे परमेश्वर ने कुछ लोगों के कुछ परेशान अवस्था थी लेकिन कुछ नहीं किया, हमारे परमेश्वर ने उनके लिए हाथ नहीं बढ़ाया बचने के लिए। ओके, तो ये बातें लोग बोलते हैं हमारे विषय में। ओके, तो फिर वहाँ पर वो निंदा करते, क्या यही वो तुम्हारा परमेश्वर है? अच्छा, तो ये है वो तुम्हारा परमेश्वर? और वो लोगों के इतना सत्यानाश हो रहा था, तब कहाँ था तुम्हारा परमेश्वर? ओके, तो निंदा करते हैं लोग। ओके, लेकिन वो निंदाएं परमेश्वर सुनता है और फिर उसके लिए परमेश्वर ही जवाब लेकर आता है। ओके, तो इसके लिए हमारे बारे में ये बातें बाहर की ओर से सब कुछ अस्थिरता में है, लेकिन हमारे अंदर से हम परमेश्वर के साथ शुद्ध बने रहने से 35 अध्याय का पहला, दूसरा और 10 वचन हमारे अंदर प्रूफ देगा कि हम शुद्ध मन से चल रहे हैं। जैसे ही वो निकल जाता है, ऐसा हम नहीं रह रहे पहले दूसरे वचन जैसा, 10वें वचन जैसा 35 अध्याय के, तो फिर हम समझ जाना है हमने कोई तो गड़बड़ी कर दिया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। हमारा सारा आनंद निकल जाता है उसके बाद। ठीक है, बाकी ठोकरों को तो आप भूल जाइए, छोड़ दो, माफ़ कर दो और अपने अंदर फिर भी परमेश्वर के शुद्धता में बने रहिए। आमीन। क्योंकि हम पवित्र रास्ते पर चल रहे हैं, हम राजमार्ग पर चल रहे हैं और उसके ऊपर कोई शरीर जो अशुद्धता करता है वो शरीर उसके ऊपर चलने नहीं पाएगा। ये गारंटेड है, 8 वचन गारंटेड बताता है। तो आप जब अशुद्धता करते हैं तो आप राजमार्ग से हट गए होते हैं, राजमार्ग से हट गए हैं तो डेफिनेट है विपत्तियों के शिकार है फिर आप। ध्यान रखिए। ओके, प्रभु यीशु हम सबको इस वचनों के अंदर छुपा के रखे और अपने हर एक चाल चलन में सुधार लाने के लिए हमारी सहायता और अगुवाई करे। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा कि हमारी तूने सहायता की ये वचनों के भेद समझने के लिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये हमारे चित्त में बने रहे और हम में ये बड़े फसलदायी हो जाए, बड़े लाभ के दिन हम इन वचनों के कारण हमारे जीवन में लेकर आते हुए देख सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। हम 2 years बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 3 chapter 9 verse से 21 verse, 1 Kings 8 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 9 वचन से 21 वचन, पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय। हम जब 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान 2 years प्लान जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में हमने पढ़ना है। अभी आपको समझ में आया ना कि हम राजमार्ग पर चल रहे हैं, अभी आपको समझ में आया ना कि हम पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम बाइबल रीडिंग नहीं करेंगे तो हम अशुद्ध काम कर रहे हैं। ओके, अगर हम अपने अंदर से ही परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं तो हम अशुद्धता में जी रहे हैं। हम अपने ही अंदर से जो भी परमेश्वर चाहता है हम नहीं कर रहे तो हम अशुद्धता में जी रहे, तो हमारा आनंद बरकरार नहीं रहेगा। ओके, हम प्रफुल्लित नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन वैसा नहीं रह पाएगा जैसा हमको परमेश्वर ने 35 अध्याय के पहले, दूसरे वचन में, 10 वचन में लिख कर दिया है, वैसे हम नहीं रह पाएंगे। ओके, ये कारण है कि हमने जो हमको दिया गया है हमको वो फॉलो करना है। ठीक है, ताकि हम राजमार्ग में बने रहे और हम पवित्र मार्ग पर बने रहे और परमेश्वर हमारी ओर से फाइट करे और हमारी रखवाली करे। ठीक है,
तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 9 वचन से 21 वचन, पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय अकेले में व्यक्तिगत समय में हमने पढ़ना है। जब हम इसे व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें सिखाएगा और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमसे बातें करेगा। उसको हमने याद रखना है, लिख कर रखना है और उसके अनुसार हमने चलना है। 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर के आत्मा ने सिखाए हुए वचनों के अनुसार हम ढल चुके हुए लोग रहेंगे। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है, तो हमने निश्चित इस पवित्र आत्मा का लाभ उठाना है। सच्चाई के आत्मा का, अनुग्रह का हमने लाभ उठाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, हम आपके हाथों में अपने आप को दे देते हैं। हम इस समय खुदा परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन को संभाला और ऊंचा किया। तूने हमारे जीवन को अच्छे समय ला कर दिया और एक अच्छा मौका दिया कि हम अपने लाइफ को परख कर देख सके। ये वचनों में से तूने हमें सिखाया। थैंक यू फादर गॉड। मेरे यीशु मसीह, हम इस समय पवित्र आत्मा से विनती करते हैं, जो वचन हमने पढ़े, सीखे, समझे और पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, वो सब कुछ में हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें परमेश्वर के ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें परमेश्वर के व्यवस्थितपन में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।